Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear student, this is chapter 10th, Hydrosphere, Tides and Ocean Currents. And today we discuss here last topic of this chapter, that is currents of the Pacific Oceans. Okay, so in the Pacific Oceans, basically current are divided into four part. Okay, first is north and south equatorial current, Kuroshio current, Kurile or Oishio current, and North Atlantic drift current. But according to your syllabus, only three are there: Kuroshio, Oishio, and North Atlantic drift current. Okay, so we start here Kuroshio. Okay, so Kuroshio, it is the warm current of the North Pacific Ocean. Means North Pacific Oceans में Kuroshio is a warm current. कैसा है? Warm current. Just see here. This is your map of your map North America और here South America. And here एशिया में आपका रशिया है और here ऑस्ट्रेलिया. इनके बीच में जो आपका ये ओशियंस है, दिस वन पैसिफिक ओशियंस. ओके, सो क्रोशियो क्या है? इट इज अ वार्म करंट. ठीक है, और कहाँ ऑरिजिनेट हो रहा है? इन द नॉर्थ ऑफ द से नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में. तो दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री. इसके नॉर्थ में क्या आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस और नीचे साउथ. दैट मींस आपका जो ये क्रोशियो करंट है वो हियर ऑरिजिनेट हो रहा है. ओके, नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में. ओके, एंड द करंट develops due to the Coriolis force and partly due to the obstruction of the Philippines in the flow of the north equatorial current. आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका यहाँ पर ऑरिजिनेट होता है और इसी की वजह से ये ऑरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रोशियो करंट और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ. ओके, सो क्रोशियो current keep the eastern coast of Japan warm even in the coldest month. Kuroshio current keep the eastern coast of Japan. This is your Japan और जापान का ईस्टर्न कोस्ट है. ओके, ये वार्म रहा इवन द मंथ ऑफ दिसंबर. जो कोल्ड वेदर होता है दैट टाइम भी ये वार्म रहता है ड्यू टू द वार्म करंट. और कौन सा है? क्रोशियो. तो सिंपल डेफिनेशन हम बोलें कि व्हाट इज द क्रोशियो करंट. तो इट इज द वार्म करंट ऑरिजिनेट in the near the equator in the North Pacific Oceans and move towards the north along the eastern coast of Japan. Okay, and eastern coast of Japan क्यों रहे? Even the cold month में भी warm रह रहा है due to the Kuroshio current. Okay, second current is here Oishio current. So Oishio current is also known as Kurile. Kurile current भी बोलते हैं उसको. Okay, अब just see first see the map carefully. देखो, दिस इज रशिया एंड दिस इज पेनिसुला ऑफ कामचतक. ये आपका ये लिखा है यहाँ पर कोस्ट ऑफ कामचतक. दिस रीजन, दिस वन. ओके, एंड दिस पॉइंट इज कुराइल आइलैंड. ये कुराइल आइलैंड है और उसके डाउन से नीचे हियर ये आपका जापान है. ओके, तो लोकेशन को अंडरस्टूड होगी. दिस इज योर कामचतका और दिस इज बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट ये बेरिंग सी है और स्ट्रेट होता है नैरो वाटर बॉडी दैट जॉइन द टू लार्ज वाटर बॉडी. अप साइड आपका आर्कटिक ओशन है, हियर पैसिफिक ओशन है. तो इन दोनों को ज्वाइंट करने वाले नैरो जो वाटर बॉडी है इसको स्ट्रेट बोलते हैं. ओके, और ये बेरिंग सी है तो बेरिंग नाम आ गया. ओके, बेरिंग स्ट्रेट. ओके, सो नाउ लोकेशंस क्लियर. हम इसको डिटेल में जाते हैं इसकी तरफ. Oishio current, the Kurile current originate from the Bering Strait. आपका जो ये करंट है Oishio current जो है, जो ये Kurile current है, because Oishio is also known as Kurile current. So Oishio current जो है originate the Bering Strait and moving southward. तो ये कर रही है southward move कर रहा है
साउथवर्ड मूव कर रहा है along the coast of Kamchatka. This is your Kamchatka. So it means it moves towards the south along the coast of Kamchatka. It touches the island of Kuril. After that Kamchatka के बाद कहाँ पहुँच रहा है? Island Kuril. Okay, where from it called as Kuril current. तो उसको यहाँ पर नाम दिया है Kuril current. Okay, it carry cold water and iceberg from the Arctic Ocean to coast of Japan. तो यहाँ जापान में क्या आपका होकैडो, ठीक है, तो होकैडो में जापान में ये पहुंच रहा है, ऊपर से ये कोल्ड मीन्स आपका ये आर्कटिक ओशन है, तो इट इज अ कोल्ड वाटर हियर, ये कोल्ड करंट है, तो ऊपर से वो नीचे मूव कर रहा है. फर्स्टली इट मूव साउथवर्ड साइड अलोंग द कोस्ट ऑफ कामचत्का, आफ्टर दैट रीचिंग द कुराइल एंड आफ्टर दैट इन जापान होकैडो. जापान में होकैडो प्लेस है, ठीक है, एंड नियर द जापान दिस कोल्ड वाटर करंट इज नोन एज ओएशियो करंट. तो नियर द जापान इसका नाम पड़ता है, मीन्स जापान में इसका नाम पड़ रहा है ओएशियो करंट. ओके, तो अगेन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको और इजी लैंग्वेज में, जस्ट सी केयरफुली. मीन्स ओएशियो करंट ऑरिजिनेट इन द बेरिंग स्ट्रेट and move towards the south along the east coast of Kamchatka. After the cross the Kamchatka, it reach in the Kuril Island. Or in the Kuril Island, its name क्या पड़ता है? Kuril Current. And after the Kuril Current, it reach in the Japan. Okay, और जापान में इसका नाम पड़ा ओएशियो करंट. Clear? And to the north and east of Japan, its cold water converges with the warm water Kuroshio current. अब जो अप साइड से आ रहा है आपका ओएशियो करंट, इट इज अ कोल्ड करंट, एंड डाउन से आपका कौन सा आ रहा है? क्रोशियो. भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्रोशियो करंट, और बोथ आर मीट नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान. ओके, सो द नॉर्थ एंड ईस्ट जापान इट्स कोल्ड वाटर कन्वर्स विद द वार्म वाटर क्रोशियो, एंड द मर्जर ऑफ द दीज टू करंट रिजल्ट इनटू डेंस फॉग लाइक दैट ऑफ न्यूफाउंडलैंड व्हिच इज हैजार्ड्स टू नेविगेशन. ये ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इन द नॉर्थ अमेरिका में हमारा आइलैंड था, इसका नाम था न्यू फाउंडलैंड. ओके, और यहाँ से हमारी आ रही थी गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ से आ रही थी लेब्राडोर करंट, और वो था मीट नियर द न्यू फाउंडलैंड. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका सबसे डेंसिव फॉग एरिया था, और यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फिशिंग होती थी, बिकॉज जब वार्म वाटर और कोल्ड वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो प्लैंकटन प्रोड्यूस होता है. प्लैंकटन इज द फूड ऑफ fish. Okay, so same here also Kuroshio or Oshio current, sorry, Kuroshio or Oshio current both are meet near the eastern coast of another part of Japan near the Hokkaido. Okay, so Kuroshio is the warm current originating near the equator and move towards the north along the eastern coast of Japan. Okay, and the southern part of Japan even warm in the month of cold, yeah, month of December. Okay, and Oishio current is originated in the Bering Strait and move towards the south along the east coast of Kamchatka, after that reaching the Kuril Island, or in the near the Kuril Island, its name Kuril current. After that it reaching the Japan Hokkaido, and here it meet with the merge with the warm Kuroshio current and produce a fog like a Newfoundland. Okay, and this point is also leading producer of fish like a Newfoundland. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्लेस है जहाँ पर फिशिंग होती है देयर इज अ न्यूफाउंडलैंड, और सेकंड लार्जेस्ट एरिया वेयर फिशिंग ज़्यादा हो रही है वो आपका नियर द जापान. ओके, बिकॉज हियर वार्म और कोल्ड करंट मीट टुगेदर. ओके, और ड्यू टू दैट आपके प्लैंकटन प्रोड्यूस हो रहा है, और प्लैंकटन इज द फूड ऑफ फिश. ओके, सो ओशियो इट इज अ कोल्ड करंट एंड क्रोशियो इट इज द वार्म करंट. ओके, सो नाउ दिस इज योर पॉइंट Ocean current. Okay, and now we discuss here last point, North Atlantic drift current. Okay, so just see this is Europe, this is Africa, this is South America or North America. Okay, and here your Newfoundland. So we already discussed in the last video कि here Gulf Stream is originate, ठीक है, and move towards the north along the eastern coast of Japan, and near the Foreland it meet with the cold Labrador current. यहाँ से आ रही है cold Labrador current. Okay, so जब आपका गल्फ स्ट्रीम मूव कर रही है towards the north,
सो यू नो टू कि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सॉरी वेस्टर्लाइज जो हमारी विंड है, परमानेंट विंड है जो वेस्टर्न से ईस्ट की तरफ चलती है। ओके, सो यहाँ से साथ में हमारी विंड भी मूव कर रही है, और ड्यू टू दैट आपकी जो करंट है गल्फ स्ट्रीम में, दिस इज गल्फ स्ट्रीम, हियर गल्फ स्ट्रीम है आपकी, गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो इसको पुश करती है और उसकी वन ब्रांच इसकी टूवर्ड्स द न्यू फाउंडलैंड चलती है, और वन ब्रांच इसकी क्रॉस द अटलांटिक ओशियंस, और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप में एंटर करती है। ओके, तो इसी को नाम दिया है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का। नॉर्थ अटलांटिक क्योंकि आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और ड्रिफ्ट होता है स्लो मूवमेंट। जो ओशंस करंट होते हैं वो फास्ट मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो वाटर स्लो मूवमेंट करे वन प्लेस टू अदर प्लेस उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ओके, सो गल्फ स्ट्रीम को यहाँ पर हमारी जो वेस्टर्लाइज विंड है वो पुश कर रही है, और वन ब्रांच ऑफ गल्फ स्ट्रीम की अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रही है और रीच इन द यूरोप कॉन्टिनेंट में। ओके, और उसकी वजह से जो यूरोपियन हमारी कंट्रीज यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन ये भी राइज होता है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वाई कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कैनेडा दिस पॉइंट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप बोथ आर अलाइंग द सेम लैटिट्यूड, ये सेम लैटिट्यूड पे है। ओके, बट दिस पोर्शन जो है वो फ्री फ्रॉम आइस है, और ये ऑलवेज आइस से कवर है। उसके पीछे कॉज क्या है? तो कॉज यही है कि हियर आपकी जो लेबरडोर करंट है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर उससे फ्रिज हो रहा है, लेकिन हियर टेम्परेचर तो लो है, लेकिन आपकी जो गल्फ स्ट्रीम है जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो क्रॉस करके इस आइस को मेल्ट कर देती है। ओके, सो ड्यू टू दैट यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट रहता है। क्लियर, ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ओके, सो बेसिकली इसका जो एरिया है वो 50 डिग्री नॉर्थ टू 64 डिग्री नॉर्थ के बीच में, जो हमारे लैटिट्यूड है 52 मीन्स 52 और 10 डिग्री वेस्ट टू 30 डिग्री वेस्ट के बीच में जो एरिया हमारा, इसी एरिया को बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो abruptly named the North Atlantic Drift Current is a slow moving body of water located between the 50 degree north to 64 degree north and 10 degree west to 30 degree west, इन दोनों के एरिया के बीच में ये लाई करती है। ओके, और वेरी स्लो मूवमेंट है। तो सम टाइम इसकी एब्रिविएशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADC, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, और वेट लाई इन द नदरन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, इट लाई बिटवीन द 50 डिग्री नॉर्थ टू 64 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस ऑफ द लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड कितना है 10 डिग्री वेस्ट टू 30 डिग्री वेस्ट। ओके, एंड द करंट इज यूनिक इन दैट इट टूवर्ड्स द वार्म वाटर टू लैटिट्यूड हायर। इससे यूनिक है कि आपकी जो वाटर है ये हायर लैटिट्यूड की तरफ मीन टूवर्ड्स द पोल की तरफ वार्म वाटर जा रहा है, और ड्यू टू दैट यहाँ जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टू है। ओके, सो दिस योर पॉइंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट। ओके, सो दिस योर टॉपिक we discussed today here, oceans current, and we discussed here only three: Kuroshio, Oishio, and North Atlantic drift. Okay, so today your chapter still completed. Okay, thank you.